Hello everyone. So I am back on this channel with another lecture in the series of modern history. Today we all shall be studying about Charter Act of 1853. इससे पहले हमने कुछ और भी एक्ट्स पढ़े हैं जो आपके दिमाग में होना ज़रूरी है if you want to understand this particular act. इससे पहले हमने जितने भी एक्ट्स पढ़े हैं वो भी इसी के सीरीज़ के हैं एंड इफ़ यू वांट टू लर्न द एक्ट्स विच विल बी कमिंग अहेड ऑफ दिस देन यू नीड टू कीप ऑल द एक्ट्स दैट वी हैव स्टडीड in your mind. Fine. So if you want to learn all those acts, just go through my previous videos, and if you are not having time to go through them, then we'll be discussing them in this particular video as well, but we'll be summarizing all those acts in a go. Fine. So let's get started with our things. So this is assignment challenge on Indian history. As you all know, we are studying Indian history, so you have to take an assignment challenge. It would be conducted by Anuj Garg sir, and the top 3 winners would be getting exciting prizes from Unacademy. This is again a price hike reminder. So the prices are going to be hiked by this month on 24th of October. So you can get the subscription on Unacademy by using the code SIMPLEYT, that is SIMPLEYT. If you use that code, you will be getting 10% discount. Now this is the Unacademy's Aspire test. This is an important test for all the civil service aspirants. All India free mock test it is, and it would be conducted on 10th and 25th of every month. Okay, keep this in your mind that it would be conducted on 2 dates. You can choose either of them. The tests would be in the pattern of prelims paper 1, that is the GS paper, and the students who will be scoring like top 50, who would be the top 50 rankers, they'll be getting exciting prizes from Unacademy. Also the top 1 2 3, okay, the rankers 1 2 3, they'll be getting scholarships from Unacademy, like they'll be getting 6-month free subscription for UPSC preparation. You can enroll for our classes which would be conducted for the practice of full length mains mock paper. Fine, it would be of ethics subject, and you can attend free live special class. It would be conducted on 25th of October 9 p.m. Special batches have been started for the students who have already cleared the prelims examination and now they are looking forward to preparing for the mains. मिशन AIR1 के एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें कि आप एनरोल कर सकते हैं, and also it would be in 3 different languages. You don't feel any language barrier here on Unacademy. Bilingual, जो भी लोग bilingual background से belong करते हैं उनके लिए मिशन AIR1 करके एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें कि वो particularly मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. These batches have started from 19th of October. Then also the people who belong to Hindi background, they can choose लक्ष्य AIR1. जो भी लोग हिंदी में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मेंस की प्रिपरेशन के लिए एक बैच चलाया गया जिसका नाम है लक्ष्य AIR1. वो बैचेस 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं. And the students who are comfortable in English, they can totally go for the English batches. These have started from 14th of October by the name of Mission AIR1 program. Okay, so these are the advanced batches for the course of UPSC mains. Now the 4 different kinds of batches have been brought by Unacademy. Like the people who belong to bilingual background, they can go for bilingual batch courses. Like those who want the medium of instructions to be in Hindi as well as in English, they can go for bilingual courses. जहाँ पे आपको हिंदी ही सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए और आपको सारी जितनी भी मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी वो हिंदी में ही की जाएगी, तो आप उसके लिए हिंदी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं. दैन द स्टूडेंट्स who want the lectures to be in English, they can go for English batches, and also they will be getting all the material in English only. Fine. Then there is also another batch for the students who are looking for 2-year batch preparation. They can choose Mission 2020. They can start preparing from now onwards so that the chances of getting into that particular examination will increase. So you can choose the program Mission 2020. There the efficiency of teaching, the efficiency of providing materials and everything would be similar to the ones which are running right now for 1-year batch courses. Okay, so you can join these courses as these have already started from 19th October and 26th October.
Now you are getting with one subscription unlimited benefits, like you can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India on just one platform. Okay, the regular doubt clearing sessions would help you to clear all your queries, and also the study material would be provided in PDF format as well. Answer writing sessions would be there to strengthen your quality of answer writing. Not only answer writing, but you also would be given the tips and tricks to make your answer more and more appealing. Okay, then throughout this process you will be getting a mentor who would be guiding you through this entire process. And now when you are doing this preparation, you need to know whether the preparation that you are going through is fruitful or result oriented. Fine. So to find that out, you can take live test series which would be conducted by Unacademy from time to time. You can join that particular series where you will be able to know that where do you exactly stand. Okay, ये जो टेस्ट है यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक्स दी जाएंगी, सो दैट यू कुड हैव द रियल एक्सपीरियंस ऑफ द एक्चुअल एग्जामिनेशन. ओके, दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड अप योर मेंटल स्टेटस व्हाइल यू विल बी गिविंग द एग्जामिनेशन. ओके, तो ये आपके बेनिफिट्स है जो कि आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने से मिल रहे हैं. दीज आर सम मोर बेनिफिट्स दैट यू विल बी गेटिंग इफ़ यू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी. बेसिकली अनअकैडमी इज़ वन स्टॉप solution for complete UPSC preparation, right from the structured batches by the top educators of India in any language you want till the interview preparation. Unacademy is standing with you. Okay, if you are not able to study at if you are not able to study in the daytime, then you can also join the late night batch courses. There you will be taught as efficiently as in the daytime courses. Okay, so this is one highlighted point that I wanted to mention here. The vast range of optionals will make your preparation easy peasy, because see, you don't have to run here and there for the optionals. You will be getting all the materials of the optional subject that you have chosen on one platform itself. Okay, so this is one big advantage that you are getting from Unacademy. Now you are going for the subscription on Unacademy, then do not forget to apply the code SIMPLEYT, that is SIMPLEYT, to get 10% extra off. T20 Daily Current Affairs Test Series, it is free of cost. Daily at 7:30 you will be getting 20 questions quiz, and you would have to solve that in 20 minutes. After solving that, when you will submit the quiz, you will be getting a test analysis report where you will be able to know that how much did you score and exactly what are your weak and strong points, how much you are retaining from the events that you are learning from around the country, around the world. Okay, तो ये आपके प्रिपरेशन का एक मेजर पिलर होता है. यूपीएससी में करंट अफेयर्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. फाइन, सो टू पेस विद दैट मेजर need, Unacademy brings you T20 Daily Current Affairs Test Series, and you can join this free of cost. Now the links to our channel, you can go in the description and find them there. Just click on those links to join our channel so that you could get more and more content related to UPSC, not just related to subjects but also the syllabus, timetable, and also the strategies videos. There you will be finding the motivational videos, daily news analysis, and the notifications that UPSC is releasing by now, all the exams that are being conducted by UPSC, each and everything you will be able to get on our channel. So go and click on these links to join our channels. Now what we are studying is Charter Act of 1853, but I told you that before starting the Charter Act of 1853 you need to remember all the things that we have already learned regarding these acts. Okay, so we'll be revising all the things in a go so that you could keep all the things, you could memorize all the things that we have studied till now. Because as I told you that 1853 is the last act, so you should definitely know that what all the things happened before this. Okay, I know most of you must be remembering it, most of you must be knowing it, but there are some who would have forgotten it, so it's always good to revise more and more. Okay, so we'll be starting with that. Now first of all we need to know the series, that what exactly was the series of event. So first of all, the first act that came for the regulation of East India Company's activities was Regulating Act of 1773. Okay,
So this is the process. You have to keep this in mind. Like 1773 regulating act was passed by British government. Then in 1781 it was amended. Then in 1784 Pitt's India Act was again passed by British government. Then in 1793 Charter Act. Okay, this is the first act that was under Charter Act series. 1793. Then 1813 Charter Act number 2. Then 1833 Charter Act number 4. Then 1853, that is the last Charter Act. So we'll be studying mostly about that. Before that, we should also know that what are the things that we have learned. Okay, so we'll be starting with Regulating Act of 1773. Fine. Okay, so these are some of the things that I have written over here so that you could exactly have that particular image in your mind that we have studied these things. So first of all, Regulating Act, it was sent to India for regulating East India Company's activities. ओके, अब जब ये इंडिया में किसी भी एक्ट को भेजा जाता था तो उसका मतलब ये होता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसको अबाइड करे, फाइन, वो उसको इम्पोज करे इंडिया पर एंड ऑल्सो खुद के ऊपर, फाइन. तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इट वॉज बेसिकली टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्टिविटीज़ इन इंडिया एंड ब्रिटेन. अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी वो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग वाज, यू ऑल मस्ट रिमेंबर दैट इन 1770 देयर वाज अ डिजास्टर्स फेमाइन इन बंगाल, फाइन. सो वो जो फेमाइन हुई थी उसकी वजह से उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल से तब भी रेवेन्यू कलेक्ट किया था, लेकिन द थिंग वाज दैट इट वाज स्टिल इन लॉस. द रेवेन्यू कलेक्शन वाज नॉट एज एक्सपेक्टेड, फाइन. तो ये जो रेवेन्यू कलेक्शन उनका कम हो गया था, इस बात को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाके बोला, एंड ऑल्सो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आस्क्ड फॉर अ लोन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो इसी बात ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान खींचा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ. अब इसके रीजंस क्या क्या थे जो उनका रेवेन्यू कम हो गया था, उसके कुछ रीजंस मैंने जो फर्स्ट रीज़न आपको बताया वो था बंगाल फेमाइन. ऑब्वियसली इट वाज एन ऑब्वियस रीजन. देन द सेकंड वन वाज सदर्न इंडिया वॉर्स. उस टाइम पे जो साउथ इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारे वॉर्स हो रहे थे, जैसा कि हमने पढ़ा था. सी यू मस्ट हैव दैट पर्टिकुलर टाइमलाइन इन योर माइंड, बिकॉज सी 1799 उस टाइम पे क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी. इसका मतलब एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हुआ था. लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो गए थे. फाइन, सी 1782 भी हमने एक डेट पढ़ी थी और उससे पहले भी हमने काफ़ी सारी डेट्स पढ़ी थी. फाइन. सो ये एक ऐसा पीरियड था जब ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी सारे बैटल्स कर रही थी इंडिया में, तो उसको जितना भी एक्सपेंडिचर उस टाइम पे लग रहा था वो अपने साइड से ही पे करना पड़ रहा था. ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नॉट प्रोवाइडिंग देम विथ एनीथिंग, एनी मनी. ओके, तो उनका जितना भी रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन था वो उसी से ही, जितने भी वॉर्स और बैटल्स इंडिया में फाइट कर रहे थे वो उसी के थ्रू कर रहे थे. Now, so this is also one of the reason. Then the court of proprietors. Okay, वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल कर रही है उसके भी अलावा ब्रिटिश जो एक गवर्नमेंट है वहाँ पे कुछ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स हैं जो एक्चुअली मालिक हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है. तो ये मैंने आपको बताया था कि जो क्राउन है, ठीक है, उस टाइम पे जो क्वीन थी उन्हीं के थ्रू ये ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी. शी वॉज द हेड. तो वो जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे उसमें जितने भी लोगों का शेयर था तो उन्होंने 6% से 12% कर दिया था अपना डिविडेंड. तो इसकी वजह से भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज थे वो ड्रेन होते जा रहे थे एंड दे वर गोइंग इनटू लॉस. तो ये भी कुछ रीजंस थे. तो अब क्या हुआ, ये सारे रीजंस के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में चली गई. और जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाके लोन मांगा तो इसी चीज़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ ध्यान आकर्षित किया ब्रिटेन गवर्नमेंट का. अब क्या होता है, उन्होंने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रही है. इट इज़ नॉट like it do not have sufficient power to handle all those things, the administration in India. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों जो इंडिया है
वहाँ पे उन्होंने ये भी देखा कि जो हैवी हैंडेडनेस थी बंगाल फेमाइन की, जो नेग्लिजेंस था बंगाल फेमाइन के टूवर्ड्स, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें जो थी वो बदल गई थी। तो 1773 में एक ऐसा एक्ट आया जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेशंस लगाए जाने लगे। फाइन, नाउ द लाइक व्हाट वाज द रीज़न टू इम्पोज दिस रेगुलेशंस ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी? तो वो ये था कि पहली चीज़ ये थी, इंडिया में उस टाइम पे ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा था। बंगाल में हमने सबसे पहले देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है। हमने ये देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब दोनों ने पार्ट्स को डिवाइड कर लिया था। जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स होते थे, कमर्शियल मैटर्स होते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल करती थी। फाइन, जितना भी टैक्स कलेक्शन होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होते थे, ठीक है, सिविलियंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी, दे ऑल वर सॉल्व्ड बाय नवाब। Fine. So the division of power, this division of power was called dual system government. We have also learned the word निजामत administration. Fine. तो जितने भी निजामत पार्ट्स थे वो सारे नवाब के पास हुआ करते थे और जितने भी कमर्शियल पार्ट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हुआ करते थे। तो ये जो ड्यूअल सिस्टम था इसकी वजह से काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो गए थे। सो दिस एक्ट एक्चुअली वांटेड टू अबॉलिश द ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट इन बंगाल। Okay, so this was remedy for dual system of administration. Then the third one is extend monopoly for 20 years. Okay, so this was actually brought to extend the monopoly of East India Company to trade in India for another 20 years. Fine, because the company was already going in loss, तो उसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कंपनी को एक और चांस दिया कि आप 20 इयर्स के लिए और ट्रेड कीजिए इंडिया में, एंड देन वी विल सी आफ्टर दैट। फाइन, सो दिस वाज आल्सो एन एक्ट विच ब्रॉट एक्सटेंशन टू द मोनोपोली फॉर 20 इयर्स। अब दूसरी चीज़ एक और हुई थी, वो थी सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया। फाइन, सो दिस वाज एक्चुअली the act which was showing Britain's imperial ambitions that were accelerating in India day by day. Fine, so other than that, the East India Company, it was now converted from commercial body to a political body that was running under the British Crown. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उनका अब इंटरवेंशन इंडिया और उसके अफेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा था। इस एक्ट के थ्रू ही इट वाज द फर्स्ट एक्ट विच एक्चुअली लेड टू इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडियन अफेयर्स। ओके, विच एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब देखिए, ये अगर एक्ट है तो इसके कुछ प्रोविजंस थे, देन ऑल्सो देयर आर सम डिफेक्ट्स। तो ये एक्ट के बाद और भी एक्ट्स को लेकर आना पड़ा। इसका मतलब यही था ना कि ये एक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो इसके क्या क्या डिफेक्ट्स थे, लेट्स स्टडी देम। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग वाज, जो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट में, वो वेग थे, वो अनक्लियर थे, लोगों को समझ नहीं आया था डिवीजन ऑफ पावर, और उनकी बाउंड्रीज नहीं थी कि किसकी पावर कितनी है। ओके, सो दिस वाज वन प्रॉब्लम। देन ऑल्सो देयर यूज्ड टू बी कॉन्फ्लिक्ट्स इन गवर्नर जनरल काउंसिल कॉज्ड, एंड दिस कॉज्ड डेडलॉक बिटवीन 1774 टू 76। ठीक है, 2 साल डेडलॉक हो गया था जब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई थी उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे। ओके, देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन देयर ओपिनियंस, और जिसकी वजह से कुछ हुआ ही नहीं 2 सालों तक। ठीक है, ऐसा ही खाली पड़ा रहा। देन the third thing was that the Supreme Court's jurisdiction, they were also unclear. The relations of Supreme Court with Governor General Council was also unclear. ठीक है, तो ये कुछ वेग पॉइंट्स थे जिनकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। फाइन, सो देयर वाज आल्सो अनदर प्रॉब्लम, जो बंगाल का कंट्रोल था। फाइन, जो सबऑर्डिनेट पॉलिसीज थी उनके ऊपर काफ़ी इनफेक्टिव था। सबऑर्डिनेट पॉलिसीज, सी द थिंग वाज दैट द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द सुप्रीम पावर एट दैट टाइम। ठीक है, डिक्लेयर किया गया था इस एक्ट के थ्रू, लेकिन जब वो प्रैक्टिस किया गया तो इट वाज नॉट दैट इफेक्टिव एज इट वाज थॉट टू बी। तो इसी की वजह से जो रेगुलेटिंग एक्ट था फर्स्ट, वो फेल हो गया था। ऑफिस का डिवीज़न आपको पता ही है इसमें क्या हुआ था। सबसे पहले
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, ये वही लोग थे जो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट करते थे, तो इनको अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना लगा था। मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब कमर्शियल के साथ साथ एक पॉलिटिकल बॉडी भी बन चुकी है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उसमें 24 मेंबर होते थे जो कि 4 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते थे, एंड 1/4 ऑफ देम वर टू बी रिटायर्ड एवरी ईयर। Fine. Now the thing was that the office was consisting of a council, जो कि हम गवर्नर्स जनरल काउंसिल बुलाते हैं उसको। उसमें कौन कौन लोग होते थे? सबसे पहले मेन होते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फाइन, ही वॉज द हेड, ही यूज टू हेड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। फाइन, अभी वो कितना इफेक्टिव है या नहीं है वो हमें आगे के एक्ट्स में पता चलेगा, अभी सिर्फ ये एक्ट में बताया गया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। फाइन, थोड़ा थोड़ा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया जाने लगा है लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो पावरफुल होते थे, सुप्रीम होते थे, एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ कैलकाटा और फोर्ट विलियम। फाइन, तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो उनके अंडर जो भी लोग काम करते थे वो गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास थे, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे थे, एंड देयर वाज आल्सो वन मोर सबऑर्डिनेट। तो ये लोगों को मिलकर एक काउंसिल तैयार करनी थी जो कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को सेटअप कर सके। Fine, so this was regulating act of 1773. Now the another one is amending act of 1781. So why was this brought? To draw boundary between powers of court and governor general's council. फाइन, तो देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें समझ आ रहा है पॉइंट्स रीड करके, कि जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस था उसको इम्प्रूव करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट। फाइन, सो दिस वाज एक्चुअली ब्रॉट टू ड्रॉ बाउंड्री बिटवीन पावर्स ऑफ कोर्ट एंड गवर्नर जनरल्स काउंसिल। नो जी, अब देखिए जो भी सुप्रीम कोर्ट था इंडिया में वो बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर भी ही ज्यूरिस्डिक्शंस दे सकता था। तो अब इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एक्ट, ओके, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इट नेवर डिफाइंड द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ठीक है, तो इसकी वजह से भी वो फेल हुआ था। तो जो अमेंडिंग एक्ट 1781 में आया था उसमें ये बोला गया कि रेवेन्यू ऑफिसर्स, ज़मींदार्स, ऑफिशियल एक्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल, ये कुछ ऐसे बॉडीज़ थे जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिस्डिक्शन नहीं देगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट रिस्पेक्ट हैज़ टू बी गिवन टू द रिलीजियस व्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियंस। Okay, so this was one thing. Then also governor general can formulate regulations for working of criminal and civil court in India. ठीक है, उस टाइम पे जो भी क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स थे वहाँ पे गवर्नर जनरल अपने जो भी व्यूज़ और डिसीजंस हैं वो फॉलो करा सकते हैं, वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अनदर थिंग अंडर द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. नाउ वी शैल बी स्टडिंग the Pitt's India Act of 1784. This is an again important thing to study. So we will be starting with the first point, that is Board of Control in Britain. ठीक है, तो अब 1784 जब आया है तो उसमें दो बॉडीज़ बन गई हैं। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अभी भी था, लेकिन जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था वैसा नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव ने जब स्टार्ट किया था तो उसमें एक पावर इंडियन के पास होती थी, दूसरी पावर होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। नाउ बोथ द पावर्स, ओके, द निज़ामत पावर्स एंड द कमर्शियल पावर्स, वो दोनों ही इंग्लिश मैन के हाथों में थी। फाइन, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बनाया गया ब्रिटेन में और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो इंडिया में ऑलरेडी था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्चुअली ब्रिटेन में इसलिए बनाया गया था टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फाइन, ईस्ट इंडिया कंपनी ही अगर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगी तो देयर वुड बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन। ओके, तो इसकी वजह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में बनाया गया, जहाँ से रूल्स और रेगुलेशंस को लेजिस्लेट किया जाएगा और लेजिस्लेट करने के बाद वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एज एग्जीक्यूटिव वर्क करेंगे इन इंडिया एंड ऑल्सो दे विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट करके, ये बेसिकली 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो काफ़ी इनफेक्टिव था, इसलिए लेकर आना पड़ा।
और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट हो गई थी। तो यही कुछ चीज़ें थी जिनको रिफॉर्म करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर आना पड़ा। इसके अलावा जो फिनेंशियल पोजीशन थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो भी डिटीरियोट होती जा रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ रीजंस थे, जैसे कि बंगाल फेमेंस, जो वॉर्स हो रहे थे इंडिया में, वो जो 1784 से पहले की कंडीशन थी फिनेंशियल, वो बेसिकली डिक्लाइन इसलिए की गई थी क्योंकि जो कार्नाटिक वॉर्स हो रहे थे इंडिया में उस टाइम पे, फाइन, तो उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी लॉस हो रहा था। उनके जितने भी मैन पावर और मटेरियल्स में पैसे जा रहे थे तो वो कहाँ से वो कॉम्पनसेट कर रहे थे, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था उससे, तो वो उतना अमाउंट जो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था वो उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। ओके, सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। देन द गवर्नर जनरल हैड नाउ टू मास्टर्स टू सर्व, देन अगेन देयर वाज नो क्लियर बाउंड्री, फाइन। तो इसमें कुछ जो है प्रोविजंस वो ये थे कि इंग्लैंड में जो ऑफिस है इसका वो कैसे डिज़ाइन किया गया। इंग्लैंड में 6 पार्लियामेंट्री कमीशंस बनाए गए जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाने जाएंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में वर्क करेगा और वो इंडिया के सिविल, मिलिट्री, डिफेंस, रेवेन्यू, ये जो चीज़ें हैं इनको कंट्रोल करेंगे, इन्हीं को लेजिस्लेट करेंगे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम है फिर इंडिया में? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग थे जिनको इंडिया में ये जितने भी ऑर्डर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल की तरफ से आएंगे उनको इम्प्लीमेंट करना था, एंड दे वर टू बी फॉलोड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द पीपल ऑफ इंडिया एज वेल। ओके, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर ये कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ था। एंड ऑल्सो द 4 मेंबर काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, इट वॉज नाउ रिड्यूस्ड टू 3 मेंबर जनरल काउंसिल। ओके, तो ये भी एक चीज़ हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर। नाउ द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब हम आते हैं हमारे चार्टर एक्ट्स पे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, देन द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, देन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1793। Okay, so the first point is monopoly extended for 20 years. See, all the charter acts when they were brought in India, they were basically brought to extend the monopoly of East India Company for 20 more years. Okay, so this was the main motive was to extend the monopoly of the East India Company for 20 years. So ये हर point में आएगा 1793, 1813, then 1833 and the last act 1853, उसमें ये चीज़ नहीं आएगी, वो आपको याद रखना है। 1853 का जो एक्ट था उसमें इस मोनोपोली को एक्सटेंड जब किया गया था, देन देयर वाज नो डिफाइंड पीरियड। हो सकता था ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली छीन ली जाए और ये भी हो सकता था कि वो इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पे दे दी जाए ईस्ट इंडिया कंपनी को, फाइन। So monopoly was extended for 20 years under 1793 Charter Act. Then see, company's political power on now the company was having political power, but it was on behalf of British government. Fine. The thing was that the British government used to take some amount of money from East India Company as revenue. उनका इंडिया में जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसमें से कुछ पैसा उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था एज टैक्स। ओके, तो 1770 में मैंने आपको बताया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी लॉस में चली गई थी तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को जब लोन दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तभी से ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ पर वॉच रखने लगे थे, फाइन। तो हमने एक चीज़ देखी है कि 1793 का जो एक्ट है उसमें जो भी पॉलिटिकल पावर इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी की होती थी वो सारी बेसिकली ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही होती थी। ओके, जो डिविडेंड था अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इस एक्ट में हमें ये पता चला था कि वो 10% बढ़ा दिया गया था। ओके, and also now the governor general, okay, the governor general was given more power than the subordinates which were having in the council. ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे उनके पास अब ज़्यादा पावर आ गई थी एज कम्पेयर टू गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। उनके ही सबॉर्डिनेट्स थे ऑल्दो, लेकिन ये दो प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर जनरल थे उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का अप्रूवल चाहिए था
उनके परमिशन के बिना कहीं भी वॉर नहीं हो सकता एंड कोई भी नई रेवेन्यू पॉलिसी नहीं बन सकती थी. ओके, सो द मोर एंड मोर पावर वाज गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ये बात समझ आई. अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो किसी भी डिसीजन के काउंसिल के डिसीजन को ओवर रूल कर सकते थे. समटाइम्स he also used to reject the ideas and the policies which were suggested by council if he was not agreeing to some points. Fine. तो ये चीज़ हुई थी कि उनकी पावर को बढ़ा दिया गया था. जो 1793 का एक्ट था उसमें एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो कंट्री ट्रेड था उस टाइम पे एक ट्रेंड हुआ करता था. कंट्री ट्रेड मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दे कैन ऑल्सो ट्रेड इन इंडिया बाय बीइंग ग्रांटेड लाइसेंसेस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. Fine. So this was also an activity that was carried out under Charter Act of 1793. एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड आपको पता ही है क्या है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे जिसमें कि अभी मैंने आपको बताया जो गवर्नर जनरल काउंसिल है उसमें 3 ही मेंबर्स रह गए हैं. पहला जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, दूसरा है गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास. ये जो 2 लोग हैं इनकी पावर कम है एज कम्पेयर टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ही वॉज हैविंग द सुप्रीम पावर एट दैट टाइम. फाइन. अंडर एक्ट of 1793. Now we'll be studying the Act of 1813. Companies trade monopoly the third except for its tea trade and trade with China. All Englishmen allowed to trade in India. फाइन. अब जितने भी इंग्लिशमैन थे वो इंडिया में आके ट्रेड कर सकते थे और कंपनी की जो मोनोपोली थी वो चली गई थी एक्सेप्ट इन टी ट्रेड एंड ट्रेड विथ चाइना. Under 1813 the Englishman, okay, all the British people they can come to India and trade with Indian people, but the thing was that they were under some restrictions. Okay, promotion of literature and education, as I told you that at that time under Act of 1813 rupees 1 lakh were allotted for the promotion of literature and education in India. More power was given to jurisdiction under this act and also missionaries were being set up in India. They were allowed to come to India and set up in India. It was an important feature of this act because as I told you we have studied proselytization process was enhancing in this particular period. Okay, जो बिशप है इंडिया में वो बिशप भी आ चुके थे इंडिया में और कैलकाता में जो चर्च बना था वहाँ पे भी बिशप आ चुके थे और धीरे धीरे आप देखेंगे तो लोगों के अंदर प्रोसेलिटाइजेशन की जो डिमांड है. फाइन. जो ब्रिटिश पीपल हैं दे आर एक्चुअली गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर एम्बिशन ऑफ कन्वर्टिंग द फेथ ऑफ इंडियंस इनटू देयर्स. तो ये प्रोसेलिटाइजेशन वही प्रोसेस होती है जहाँ पे अगर एक बंदा है उसका वो कोई फेथ फॉलो कर रहा है तो वो दूसरे बंदे को इंड्यूस करेगा कि आप मेरे फेथ में कन्वर्ट कर लीजिए. सो दिस इज बेसिकली प्रोसेलिटाइजेशन एंड इट वाज एक्चुअली there was fear in Indian people's mind that this the setting up of missionaries in India would lead to proselytization. Okay. अब हम पढ़ते हैं 1833 का जो सेंट हेलिना एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं हम उसको. 1833 का जो एक्ट आया था ये बेसिकली जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं. ओके, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे अब वो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहलाए जाएंगे. ओके, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हैं उनकी पावर को एनलार्ज करने के लिए एक चार्टर एक्ट आया था 1833 में. ओके, तो फर्स्ट चीज़ तो यही हुई थी इसमें चेंज के जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब उनको पूरी ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया था. इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन हो रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का. इस बात का सीधा सीधा यही मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक ही कंट्रोल के नीचे लाया जा रहा है. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज विलियम बेंटिक. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स, और फर्स्ट विलियम बेंटिक थे गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड विद द व्यू पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ओके, नाउ देर वॉज नो मोनोपोली टू ईस्ट इंडिया कंपनी. जो टी ट्रेड और चाइना ट्रेड की उसको मोनोपोली पहले मिल रखी थी अंडर 1813 चार्टर एक्ट, तो वो भी अब छीन ली गई थी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी कमर्शियलाइजेशन की पावर नहीं थी. ओके, जितने भी लोग ब्रिटेन से अब इंडिया में आ रहे थे, सेटअप हो रहे थे,
उनके लिए सारे रूल्स सेम ही थे. Okay, so this act was important. It had some important consequences because it brought abolition of slavery. इसी के अंडर जो स्लेवरी इंडिया में उस टाइम पे कैरी फॉरवर्ड की जा रही थी उसको रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया था. ओके, इट वाज अगेंस्ट स्लेवरी. तो स्लेवरी को अब इंडिया में प्रिवेंट किया जाने लगा था. एंड ऑल्सो एज आई टोल्ड यू दैट मिशनरीज वर बीइंग established, so there was a little bit tilt towards Christianity. Okay, and the Indian Law Commission, it was set up for the first time, and the first chairman was Macaulay. Under him only the first rules were made for Indian people. Okay, and also Indians in government services. Now this was an very दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि जो इंडियन थे उनको अब गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एलिजिबल कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो यूरोपियंस होते थे सिर्फ वही गवर्नमेंट सर्विसेज में दे वर ओनली रिकमेंडेड फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज. So this was an important feature of 1833 Act. And under this act, while this act was brought in India, there was also split in Bengal presidency. वो दो पार्ट में टूट चुका था. आगरा बन चुका था, एक फोर्ट विलियम बन चुका था. ओके, सो एज यू ऑल नो दैट उसके बाद 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी टूट गया था. तो हमने वो चीज़ भी देख ली यहाँ पे. नाउ वी विल बी स्टडिंग आवर मेन एक्ट, दैट इज 1853 का चार्टर एक्ट. तो इससे पहले हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, आई होप वो आपको समझ आ गई हो, बिकॉज दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू remember, and also you need to keep these things in your mind so that you could study other acts very smoothly. So we'll be starting with the Charter Act of 1853. Now these are the 4 points that are being covered in this particular series of act. 1853 का जो एक्ट था उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो थी सिविल सर्विसेज. ओके, दैट इज़ आवर मेन फोकस, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है वो 1853 के एक्ट के बाद ही इंडियंस के लिए ये चीज़ की परमिशन हो गई थी दैट नाउ यू कैन गो इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड एज दे वर अलाउड. सी 1833 का जो एक्ट था उसमें उनको एलिजिबल किया गया था, लेकिन देयर वर सम कंस्ट्रेंट्स. लेकिन जो 1853 का एक्ट आया उसमें सिविल सर्विसेज में इंडियंस को एक ऐसा मौका मिला था, क्योंकि अब जो सिविल सर्विसेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो अपॉइंटमेंट होगा वो थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा. फाइन, दिस कॉम्पिटिशन वॉज ओपन टू ऑल द पीपल इन इंडिया. सो दिस वॉज द मेन फीचर ऑफ 1853 एंड दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. Government of the government, okay, at the time the British government, it actually divided the executive and legislative roles. फाइन, इंडिया में ये फर्स्ट एक्ट था जिसके अंडर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पार्ट्स को अलग अलग किया गया था. तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो है ये दिस इज बेसिकली द जेनेसिस ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म हियर. ओके, सो जेनेसिस यहाँ से ही हमें मिल रहा है. बेसिकली दीज आर द फिलोसफीज दैट वी हैव अडॉप्टेड, और उनको हमने अमेंड कर करके इंडिया को फाइनली एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री में तब्दील कर लिया था. सो वी आर स्टडिंग this 1853 act, under which civil services were thrown open to all, like anybody can participate, anybody could compete, and it would be decided on the basis of merit only. The Governor General of India could reject legislation enacted by Legislative Council. Now that means there was enlargement in the Governor General's power. Governor General of Bengal was given more power and changes in Governor General's Council. जो Governor General Council है उसमें भी कुछ changes आए थे. क्या changes आए थे वो हम देख लेंगे. Okay. Now what were the provisions of Charter Act of 1853? So first thing is Governor General Office. We are studying about the composition of office. फाइन, द थिंग इज पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि 3 मेंबर्स रह गए थे जो काउंसिल थी उसमें. अब उस काउंसिल में 4 मेंबर आ चुके हैं. इससे पहले जो एक्ट आया था उसमें भी 4 मेंबर लाए गए थे, लेकिन द थिंग वाज दैट जो 4th मेंबर था, ओके, उसके पास उतनी पावर्स नहीं होती थी जितनी बाकी मेंबर्स के पास होती थी. ही वॉज नॉट गिवन ऑल दोज पावर्स एंड ही हैड सम लिमिटेड पावर. अब जो 4th मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया है, द लॉ मेंबर, ओके, ही वॉज द 4th मेंबर. ही बिकेम अ फुल मेंबर विद द राइट टू वोट.
Then the second point is the Legislative Council, which had 6 members, now had 12 members. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले बनाई गई थी उसमें सिर्फ 6 लोग थे, अब उसमें 12 लोग हो गए. वो 12 लोग कौन थे? दिस इज द चार्ट थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड. द फर्स्ट वन वाज 1 गवर्नर जनरल हैज़ टू बी देयर, 1 commander in chief has to be there, 4 members of governor general's council, then 1 chief justice of Supreme Court at Kolkata, 1 regular judge of Supreme Court at Calcutta, then 4 representative members. अब ये जो 4 representative members है ये basically जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे सर्वेंट्स वही होते थे, but they must be having an experience of at least 10 years. ओके तो उनको ही फिर हायर कर लिया जाता था और इनको लोकल बॉडीज़ के थ्रू ही रेकमेंड किया जाता था. सो दिस इज़ द कॉम्पोजिशन चार्ट ऑफ 12 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. देन द सेकेंड पॉइंट इज दैट फर्स्ट हमने पढ़ा ऑफिस का कॉम्पोजिशन क्या था, सेकेंड हम पढ़ रहे हैं द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यू हैव टू कीप इन माइंड दीज आर द पीपल हु वर वर्किंग अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दे वर एडमिनिस्टरिंग इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओनली. सो द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुड क्रिएट अ न्यू प्रेसिडेंसी ऑन प्रोविंस. This was because of difficulties that were faced in administering the increasingly large Indian territories of Britain. Fine. Since 1833 and 1853, 2 new provinces of Sindh and Punjab were added. It could also appoint a lieutenant governor for these provinces. In 1859, a lieutenant governor was appointed for Punjab. This act also led to creation of Assam, Burma and Central provinces. जो second important point था 1853 का चार्टर एक्ट के अंडर वो ये था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बेसिकली डायरेक्टर्स ही हुआ करते थे. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब कोई भी टेरिटरी जिसको उन्हें एडमिनिस्टर करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है देन दे कैन ईजिली स्प्लिट दैट प्रेसिडेंसी इनटू द नंबर ऑफ पार्ट्स दे वांट टू. Okay, they can create a new presidency or province now so that they do not feel any difficulty while administering the part of that territory. Okay, तो 1833 और 1853 में सिंध और पंजाब ऐड हुए थे और इसी प्रोसेस के थ्रू असम, बुर्मा और सेंट्रल प्रोविंसेस भी अलग अलग किए गए थे. So this is the second point, and the third point is the act provided for the appointment of a separate governor for Bengal presidency. As we have studied that the governor of Bengal was now called the Governor General of British India. Okay, the power of board of directors was reduced from 24 to 18, out of which 6 people were to be nominated by British Crown. Okay, this is again an important point. जो board of directors ये कहाँ पे हुआ करते थे? See, these are the people who used to live in Britain. Okay, ये ब्रिटेन में पार्लियामेंट चल रही थी वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनकी एक काउंसिल थी जिसमें 24 मेंबर्स हुआ करते थे. लेटर दे वर रिड्यूस टू 18 ओनली, आउट ऑफ विच 6 पीपल वर टू बी नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश क्राउन. ओके, सो एवरीथिंग वाज नाउ अंडर ब्रिटिश क्राउन्स पावर ओनली. अब कोई भी चीज़ जो भी स्टेप ईस्ट इंडिया कंपनी ले रहा है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले रहा है, इट वाज ऑल डायरेक्टेड बाय द ब्रिटिश क्राउन. फाइन. सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ 1853 एक्ट. Then the most important thing that we have to study under this act is Indian civil services. Okay, because we are doing that only, we are preparing for that thing only, so we should know that how exactly it originated and where did it come from. So 1853 का जो एक्ट है उसी के अंडर इंडियन सिविल सर्विसेज इंडिया में एंट्री हुई उनकी. मैकाउले कमेटी जो 1854 में बनी थी उसने ही सबसे पहले इंडिया को सिविल सर्विसेज दिया था, फर्स्ट सिविल सर्विसेज. ओके, दिस एक्ट रिमूव्ड द राइट ऑफ पेट्रोनेज टू अपॉइंटमेंट्स इन सिविल सर्विस हेल्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि जो यूरोपियंस हैं उन्हीं के पास पहले रिकमेंडेशंस होते थे और वही अपॉइंट किए जाते थे गवर्नमेंट सर्विसेज में. तो इंडियन सिविल सर्विसेज में भी सिर्फ और सिर्फ जो यूरोपियंस हैं उन्हीं को अपॉइंट किया जाता था. बट नाउ द कॉम्पिटिशन वॉज ओपन टू ऑल एंड इट वॉज बेस्ड ऑन मेरिट ओनली. तो इसका मतलब ये है कि अब इंडियंस भी आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज का जो भी एग्जामिनेशन है उसमें, एंड दे कैन ऑल्सो
be eligible to get into that particular field. Fine. So the report recommended that only the fittest be selected to the ICS, Indian Civil Services. Only the fittest is to be selected, and that is true only. It is like that legacy is being carried forward till today. ठीक है, वो चीज़ आपको समझ आ ही रही होगी that only the fittest is to be selected for Indian Civil Services. ओके तो वो लेगेसी आज भी चली आ रही है, एंड शायद उसी के लिए इतना सबको मेहनत करना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू गेट इनटू इंडियन सिविल सर्विसेज. Okay, so let's get back to our topic, that is the key features of Charter Act of 1853. For the first time, like what were the things that happened for the first time in India under this act? For the first time, the legislative and executive functions of Governor General's Council were separated. Okay, as I told you that under this act only the legislative and executive functions were separated. अब देखिए, आपको confusion नहीं होना चाहिए कि legislative और executive functions क्या है. See, legislative functions और executive functions उस टाइम पे भी वही मतलब देते थे जो वो आज देते हैं. legislative function मतलब क्या, जो भी laws बने हैं, जो भी rules बने हैं, उनको legislate करना. फाइन, उनको इनेक्ट करना, उनको आगे रखना, पुट इन टू प्रैक्टिस. फाइन. एंड द एग्जीक्यूटिव वन, दे आर द पीपल बेसिकली who would implement those laws, who would impose those laws on the public and on themselves. फाइन. तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में यही डिफरेंस होता है. अब देखिए, जैसे कि लेजिस्लेटिव कौन होता है, जो पार्लियामेंट में जो भी लोग बैठे हैं वो लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं. इसका मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर लॉ को अच्छे से स्टडी करेंगे, दे विल गो थ्रू इट, देन दे विल हैव देयर ओन ओपिनियंस, दोज वुड बी शेयर्ड विद अदर्स, एंड वो जो भी लॉ है उसको क्रॉस चेक किया जाएगा एंड फिर उसको पास किया जाएगा. ठीक है, तो एक्ट का मतलब यही है ना कि जो भी एक्ट आया है उसको पहले पढ़ा जाएगा, उसको समझा जाएगा, फिर वो सही है या नहीं उसके बाद ही उसको थ्रू मेजॉरिटी पास किया जाएगा. फाइन. सो दोज आर द पीपल हु बिलोंग टू लेजिस्लेटिव काउंसिल. देन द एग्जीक्यूटिव वंस, जो अब मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर है. फाइन, पार्लियामेंट अलग हो गया, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर है और जो भी उनके नीचे मिनिस्टर्स है वो सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बिलोंग करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और उनकी जितनी भी सेना है उनको अब सारे जितने भी लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करना है लोगों के ऊपर. ठीक है, उसको पब्लिक के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, तो वो एग्जीक्यूटिव क्लास को बिलोंग करते हैं. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, यू नो, विद दिस आइडिया दैट व्हाट इज एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज लेजिस्लेटिव. सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल वर सेपरेटेड. ओके, तो अब यहाँ से दो डायरेक्शंस में गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल टूट चुकी है. फर्स्ट जो है वो है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव. ठीक है, दोनों के रोल्स अलग अलग दे दिए गए हैं दैट यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू डू दैट. सो दिस इज द की फीचर ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853. देन दिस एक्ट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज द जेनेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज स्टिल होल्डिंग इट्स हैंड इन इंडिया. Fine. So this act basically is the foundation of modern parliamentary form of government, and that you have to understand. Okay, वो हमने नहीं बनाया है, वो हमें जो कॉलोनाइजेशन हुआ था उसी की देन है जो पार्लियामेंट फॉर्म इंडिया में चल रहा है. हाँ, वो अलग बात है, उसके बाद हमने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स किए, जिससे जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, ओके, इट इज़ इटसेल्फ अ प्राइड. Okay, so this is basically the foundation was derived from the colonization period. Okay, the legislative wing of Governor General's Council acted as parliament on the model of British Parliament. Okay, this I have already explained you कि जो भी पार्लियामेंट फॉर्म है इंडिया में, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया हमारा लेजिस्लेटिव, जहाँ पे सारे जितने भी रूलर्स हैं वो अपने आइडियाज़ लोगों के जो पब्लिक है, ठीक है, जो कॉमनर्स हैं उनके बिहाफ पर आगे रखेंगे और उनको कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, और डिस्कस किया जाएगा. एंड द पीपल हु विल बी एग्जीक्यूटिंग दे बिलोंग टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इवन इन द पार्ट ऑफ पॉलिटी. So this act extended the company's rule for an indefinite period, unlike the previous charter act. As I told you कि indefinite period के लिए हो सकता है या फिर हो सकता है कि उससे snatch कर लिया जाए. So it
finally came out to be an indefinite period. Company's influence was further reduced by this act. The board of directors now had 6 members who were crown nominated. Fine, so through this act, the liquidation of company East India Company was still गोइंग ऑन ओके तो इस एक्ट के अंडर उसके जो पार्ट्स थे कंपनी के उसको और ज़्यादा डिक्लाइन कर दिया गया और अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसके मेंबर्स भी क्राउन ही जो ब्रिटिश क्वीन थी वही नॉमिनेट करती थी. इट गेव बर्थ टू द इंडियन सिविल सर्विसेज एंड वाज ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग इंडियंस. दिस एंडेड द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स बाय रिकमेंडेशन and started a system of open and fair competition. So we are so lucky that this act basically came to India, because through this act only we could get our Indian civil services, okay, which is an esteemed arena itself, because you know it is the exam where only the fittest has to be selected. The recommendations, the bribe, nothing works there. Okay, so this is basically the most esteemed examination in India, because it is open and fair to all. And what all the things that happened for the first time in India was local representation was introduced into legislative council in the form of 4 members from the local governments of Bengal, Bombay, Madras and northwestern provinces. Okay, तो उस टाइम पे जो 4 मेन प्रेसिडेंसीज थे वो थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थवेस्टर्न प्रोविंसेस. तो उसमें से अब जो इंडियन लोग हैं फाइन, उनको भी एक एक्सपोजर मिलेगा जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म हो रही है उसमें, क्योंकि जो 4 लोग थे, 4 मेंबर्स को लोकली बुलाया गया था. ये कुछ प्रोविंसेस थे जैसे कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस. यहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के लिए 4 लोगों को बुलाया गया था. ओके, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो 4 लोगों को भेज सकती थी. ये ज़रूरी नहीं था कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही हो, यूरोपियंस भी हो सकते हैं, बट दे हैव टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स on behalf of the people of that particular province. Okay, so there was also, but these could be Indians as well. Okay, so this was one more feature of 1853 Charter Act. Then these are the things that we have already covered. The control of company. Okay, we have studied that now the control of company is being declined in India. It is basically the colonization of India is taking place in under the East India Company. The British Crown is administering India. तो उसमें जो कंपनी है उसका कंट्रोल कुछ नहीं, उसके अब जितने भी पॉलिसीज है उसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट्स है वो सारे वो ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर ही आगे रख रहा है. उन्हीं के बिहाफ पर जितने भी स्टेप्स ले रहा है उन्हीं के बिहाफ पर ले रहा है. नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन, एज आई टोल्ड यू, इंडियन सिविल सर्विसेज बेसिकली it made Indians eligible to enter into this particular arena where Indians could also represent themselves and they could also be part of the councils of legislation and execution. So central legislature हमने देख ही लिया कि अब centralization हो चुका था, but the thing was that जो local governments थी अलग अलग provinces की इंडिया में, वहाँ से भी कुछ members को बुलाया जाता था to represent their own province. तो जो centralization था अब वो एक fair team work कर रहा था. Fine. So this is also an important point. Then the provincial legislature, it was abolished. अब अलग अलग provinces में legislature नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक central legislature चलेगा जहाँ से provinces से local members को बुलाया जाएगा, 4 local members को, और वो अपने province को represent कर सकते हैं, and what all the problems are there and what all the things are going on in their provinces, they can discuss those things in the central लेजिस्लेचर. ठीक है, वो लोगों के बिहाफ पे उनके जितने भी आइडियाज है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन द रेवेन्यू कलेक्शन. ओके, इट वाज नाउ अंडर ब्रिटिश क्वीन. जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है अब उसके अंडर ही रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है. अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी कमर्शियल पार्ट्स थी उनको ख़त्म कर दिया गया था. सो रेवेन्यू वाज स्टिल कलेक्टेड एंड नाउ वी विल ऑल्सो कम टू नो दैट हाउ द ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज, how drain of wealth took place in India. Fine, these are some of the things that we will also come to know later in the video. The other points, okay, we have also studied other points.
like the council's body and also the Macaulay's committee, then the board of directors. Okay, we have studied each and every point regarding 1853 act. Now, what makes the act of 1853 different from the previous one? 1833 में भी एक एक्ट आया था, उससे पहले भी एक्ट है, तो क्या डिफरेंसेस थे? ओके, तो ये एक मैं बोल सकती हूँ नेक्स्ट लेवल का चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसमें इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर्स को कंपटीशन के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि पहले हमने देखा था रिकमेंडेशंस के थ्रू अपॉइंट किया जाता था। इंडियन लॉ कमीशन पहली बार बनाया गया, जहां पर के सारे लॉज जो इंडिया से रिलेटेड हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। ओके, एंड ऑल्सो दे वुड बी फॉर्मुलेटेड देयर इटसेल्फ। तो लेजिस्लेट करने के लिए इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ थी उसको 24 से 18 कर दिया, जिसमें भी 6 लोग ब्रिटिश क्राउन के अंडर नॉमिनेट किए जाएंगे। एक्सटेंशन इंडेफिनेट, ठीक है, तो इंडेफिनेट एक्सटेंशन हुआ था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड इंडिया में था उसको इंडेफिनेट एक्सटेंशन दिया गया था। ओके, so I guess this was all about Charter Act of 1853, and we have studied each and every point regarding this act. Other than that, we have also studied all the acts which were passed by British government. ओके, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमने स्टार्ट किया और हमने 1853 का एक्ट जो लास्ट चार्टर एक्ट था वहाँ तक पढ़ लिया है। इसके आगे हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो बेसिकली वो चीज़ें होंगी जिसकी वजह से 1857 में रिवोल्ट हुआ था। ओके, वी विल स्टडी अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, जिनकी वजह से जिनकी कुछ पॉलिसीज़ जो उन्होंने एक्सटेंसिवली यूज़ करी थी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसकी वजह से 1857 में रिवोल्ट हुआ था। ओके, सो वील बी स्टडिंग all these things in the other videos, and keep following these lectures so that we could complete the entire history in shorter time. So I hope you would like the video, and also thanks for watching. Keep learning with us.